Hello everyone, my name is Sanchit Bansal and I welcome you all to our YouTube channel Learning Sessions. In this video, we are going to talk about the division using the Vedic maths. I have made a series of videos on the topic of Vedic mathematics. If you have not seen my whole series, you can go and watch whole of my series where I have talked about how to add the numbers using Vedic maths and how to multiply, how to divide, how to square, how to do the cubes and how to find out the cube roots. Right, so I've done all of them. You can go and watch all the Vedic maths series if you want to speed up your calculations. All right, in this video we are going to talk about particularly about the division. This division is that it cannot be covered in a one video. It will need some series of videos, right, which you can easily find out on my channel. So right now we are going to talk about the division of a number by a number which is nearer to the base, What is the base and what is complement? I'll just give you a quick hint, otherwise I have explained this in multiple videos. What is base and what is complement? Base is the number which is power of 10. It could be 10 power 1 is 10, 10 power 2 is 100 is the base, 10 power 3 that is 1000 is the base, 10 power 4 that is 10,000, so 10,000 is the base. So base is 10, 100, 1000, 10,000 and 1 lakh. These numbers are considered as base. Now what is complement? The number which will be subtracted from its base will be considered as a complement. For example, if I say what will be the complement of 9? 9's complement will be 10 minus 9. If I say what is the complement of 80? 80 will be subtracted from 100. Okay. So the difference from the nearest base is considered as their complement. Alright, now let's see how we are going to divide a number that with the number which is nearer to the base. For example, I have written one example. 32 is divided by 9. How can we divide 32 by 9? Here 9 is nearer to the base of 10. So what we will do, we want to divide 32 by 9. So first of all, we'll take the units place out, right? And we'll write the divisor here. Now, be very careful. First step is take the units place out, right? Now, it's simple. Now, the second step, being very careful again, write down this number as it is. Write down, or you can say drop down this number as it is. We got 3 here. Now, this 9 is here. Here we have to write the complement. Complement of 9 is 1. 10 minus 9 is 1. So 1 is written down here. Okay. So what? Now the first step was taking this units place out. Second step was dropping down the number as it is. Third step will be multiply this number with the complement. And write it here. It will be 3 here. Now add these numbers. You will get 5. So the answer will be, this 3 will be quotient, and this 5 will be remainder. Alright, I'll just give you a quick summary. Here I have 32 that is divided by 9, right? 9's complement is 1. So this structure can be made out earlier only. Number 9, its complement, number complement. Now take the units place out, right? Start from this side. 3 drop down as it is. Then multiply this number with the complement and write it down here. Then you will get this. Okay. So 3 is the quotient, 5 is the remainder. It seems very simple, and the level of the question, as it seems it's quite simple. It's actually this much simple. जितना ये आसान आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आसान ये क्वेश्चन है भी. चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. जैसे 47 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 के साथ. मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूं ताकि आप सीख पाए. अभी हम जो सीख रहे हैं उसमें हम 2 डिजिट वाले नंबर को सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं. 2 डिजिट को सिंगल डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं. चलिए क्या करने वाले हैं, पहले हम चलिए 47 है हमारे पास, उसको 6 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले तो यूनिट्स प्लेस को हटा देते हैं, है ना,
और यहाँ 6 का जो कॉम्प्लीमेंट है 4, 6 अब 10 से 4 नंबर दूर है तो 4 उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो पहला नंबर तो एज इट इज ड्रॉप हो जाता है, पहला नंबर एज इट इज ड्रॉप हो जाता है। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 आप यहाँ लिख लेंगे। 16 और 7 ऐड कर लीजिए, 16 और 7 आप ऐड कर लीजिए। 16 में 7 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 23। 16 में 7 ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 23। तो अभी पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर लिखें तो दिस शुड बी द रिमाइंडर एंड दिस शुड बी द क्वोशंट। ये नंबर जो है 23 ये आपका रिमाइंडर होना चाहिए और जो ये नंबर 4 है ये क्वोशंट होना चाहिए। परंतु ऐसा होगा नहीं, अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा नहीं। उसका एक सिंपल रीजन है, आपको बेसिक अगर डिवीजन याद हो तो बेसिक डिवीजन में आपको सिखाया जाता है दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी जो 23 है वो 6 से छोटा होना चाहिए, 23 6 से बड़ा नहीं हो सकता। उस केस में आप मेंटल कैलकुलेशन ये आप कर सकते हैं, 23 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 23 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा 6 3 18, 18 के बाद 5 पीछे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो आप अब हुआ क्या है, हमें जब मैंने 23 को फिर से 6 से डिवाइड किया तो 3 क्वोशंट मिल गया, 3 क्वोशंट मिल गया और 5 मेरा रिमाइंडर आ गया। 3 क्वोशंट मिल गया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो जो क्वोशंट मिला था वो बेटा यहां ऐड कर दीजिए, क्वोशंट मिला था वो इस 4 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, और रिमाइंडर तो वही रहेगा जो आ गया यहां पे 5। ठीक है, तो ये आ गया 4 + 3 7, तो 7 मेरा क्वोशंट हो गया, 5 मेरा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी। अभी तक हमने जो समझा है उसमें हमने देखा है कि 2 डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि जो डिवाइजर है अगर वो बढ़ जाता है तो कैसे करना है। बट अभी इस वीडियो में हम और सीखने वाले हैं कि 2 डिजिट से बड़ा अगर 3 डिजिट नंबर आ जाए, अगर नंबर हमारे पास 3 डिजिट वाला आ जाए तो उस केस में हम कैसे उनको डिवाइड करते हैं। चलिए एक बार वो भी देखते हैं। आप चाहें तो कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी का ले लीजिए, पहले एक बार मेथड समझिए, फिर उसके बाद कोई भी नंबर अपनी मर्जी का लीजिए और उस पर ट्राई करिए। अभी मैं नंबर ले रहा हूँ, जैसे 123 को डिवाइड कर लिया हमने 9 के साथ, 123 को डिवाइड कर रहे हैं 9 के साथ। जब हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे, 9 के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इस यूनिट्स प्लेस को हटा देते हैं, सिर्फ यूनिट्स प्लेस को हटाना है, बाकियों को नहीं। बाकियों को क्या करना है वो भी समझेंगे। और यहाँ पे 9 के नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1। ठीक है, यूनिट्स प्लेस को हटा दिया। अच्छा चलिए, अब वही सेम प्रोसेस, अब ये अब इसको इस 1 को नीचे उतारिए, 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 पे आइए। अब इस 2 पे कैसे जाना है, जो भी नंबर यहाँ पे है उसको कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 1 × 1 1, 1 को यहाँ लिखिए। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को फिर कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 3 को कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 3 + 3 आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये हमेशा ही रिमाइंडर बचता है। और रिमाइंडर एक बार चेक करना है आपको कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो, अगर छोटा नहीं है तो उसे छोटा बनाइए। यहाँ पे ऑलरेडी 6 जो है 9 से छोटा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर पीछे बच रहा है वो मेरा क्वोशंट है, वो मेरा क्वोशंट है, वो मेरा क्वोशंट है। आई होप आपको यहाँ तक फील आ गई होगी, बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। चलिए, तो ये आ गया 13 मेरा क्वेश्चन आ चुका है और 6 मेरा रिमाइंडर आ चुका है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको थोड़ी सी बात और क्लैरिटी से समझ में आने वाली है। जब भी बेटा आप डिवाइड करते हैं एक सिंगल डिजिट के साथ, देखिए अब यहाँ पे जो बेस है वो 10 है, बेस है वो 10 है, 10 में एक 0 होता है। तो जब भी आप इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे कभी भी, जैसे पहले 3 एग्जांपल्स में भी ये बात एप्लीकेबल है और अब जो मैं करने वाला हूं उसमें भी एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास 642 नंबर है और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 642 को 8 से डिवाइड करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं पहले यहाँ पे इसका डिवाइजर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो हम क्वोशंट जो लास्ट यूनिट्स प्लेस होता है उसको हटा देते हैं, है ना। सॉरी एक सेकेंड। जब भी जैसे आपके पास 642 है, इसको 8 से डिवाइड करना है। अब मैं कह रहा था कि हमारा जो बेस है वो सिंगल जीरो वाला बेस है, सिंगल जीरो वाला बेस है बेटा, तो उसको ना पेयरिंग करते हैं हम, पेयरिंग करते हैं।
ठीक है। ऐसी जब डबल जीरो बेस वाला कोई करेंगे क्वेश्चन हम, तो उस केस में फिर हम दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एक सिंगल सिंगल डिजिट के पेयर बना रहे हैं, तो वहां डबल डबल डिजिट के पेयर बना देंगे हम। अब यहाँ पे जब पेयर बन गया है, ठीक है, तो ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सॉरी 2 तो बाद में देखेंगे, पहले 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 8 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 2 है, 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा। फिर 12 में 4 ऐड करेंगे, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आगे चलते रहिए। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 32, 32 यहां आ जाएगा। 32 में 2 ऐड कर दीजिए, 34 आ जाएगा। ओके, चलिए जो लास्ट वाला नंबर है इसको 1 मिनट के लिए हटा के याद रखिए, ये तो रिमाइंडर ही होने वाला है। जो लास्ट वाला नंबर है वो रिमाइंडर ही होने वाला है। तो 34 तो मेरा रिमाइंडर है ना, 34 तो मेरा रिमाइंडर है। अगर 34 मेरा रिमाइंडर है बेटा और डिवाइजर मेरा 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 34 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 34 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 4 क्वोशंट आ जाएगा, 4 जो है मेरा क्वोशंट आ जाएगा और 2 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 आपका क्वोशंट और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो जो 4 मेरा क्वोशंट आया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 4 जो मेरा क्वोशंट आया है इसमें ऐड कर दूंगा, रिमाइंडर मेरा 2 रह जाएगा, रिमाइंडर मेरा 2 रह जाएगा। अब क्वोशंट कैसे निकलेगा आगे, 16 और 4, 16 और 4 ऐड होकर 20 हो जाएंगे, ये 6 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें हमें करना है बैलेंस। अब इन्हें हमें करना है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है ये मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता हूं। ठीक है, एक बार क्विकली फिर बता देता हूं, क्योंकि वैदिक मैथ्स में ये जो बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट हर एक टेक्निक में आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। करना क्या होता है बैलेंसिंग में, जो भी लास्ट वाला नंबर है उसका सिर्फ यूनिट प्लेस उठाओ, अगला जो उसके यूनिट प्लेस 0 लिया, उसके अलावा जो नंबर बचता है उसको आप आगे कैरी कर दीजिए। 2 को आगे 6 पे कैरी कर दीजिए, 8 आ जाएगा। तो 6 + 2 8, 80। तो 80 मेरा क्वोशंट है, 80 मेरा क्वोशंट है और रिमाइंडर मेरा 2 है, रिमाइंडर मेरा 2 है। आई होप ये बात आपको थोड़ी फील हो रही है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जरा, जब यहां पे हम बात डिवीजन की कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्चुअल डिवीजन बहुत कम है, ना के बराबर है। पूरे मेथड में आपको डिवीजन नहीं करनी पड़ रही है, या तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप ऐड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और एडिशन भी आप बहुत छोटे नंबर्स की कर रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसको डेवलप कर लेते हैं ना अपने माइंड में, तो ये बहुत क्विक आपको आंसर देने लगता है। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रेडिशनल मेथड में क्या प्रॉब्लम है, इसको क्यों करें हम, ट्रेडिशनल से क्यों नहीं करें। तो जनरली मैं कहता हूं कि ट्रेडिशनल मेथड में हमारा कंफर्ट जोन है, पर उस कंफर्ट जोन में वो टाइम बहुत लेता है। एक बार ये जो टॉपिक्स आपके कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो फिर आप ये टाइम आपको बहुत रिड्यूस कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अब आप अब जैसे अभी हमने 3 डिजिट लिया है, आप चाहें तो जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लीजिए, आपके लिए वो सॉल्व करना आसान रहेगा। मैं एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे 4 डिजिट नंबर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रेज होगा। 3 4 3 1। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है, लेट्स से 9 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 3 1 को 9 के साथ डिवाइड करते हैं। चलिए 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट तो 1 आने वाला है, उसको तो इग्नोर कर दीजिए, मतलब सॉरी पहले ही लिख लीजिए। जो 1 है, इधर से जो 1 है ये हमारे रिमाइंडर का काम करेगा बाद में। ठीक है, बाकी नंबर्स को देखते हैं हम क्या करना है। 3 नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा, नंबर 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर जो भी नंबर यहाँ आता है वो पहले इस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होता है, फिर आगे बढ़ता है। कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होकर 3 यहाँ आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 7, 7 और 3 ऐड होकर 10 हो जाएंगे। 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा 10, 10 + 1 11 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा। अब इनको बैलेंस हमेशा इनको करते हैं, इसको बैलेंस में नहीं लेते। याद रखना है जो ये नीचे वाले नंबर्स हैं, इसमें जो लास्ट रिमाइंडर वाला पार्ट है वो बैलेंसिंग में काम नहीं करेगा। उससे पहले वाले जो क्वोशंट वाला पार्ट है, यहां से हमारा क्वोशंट आने वाला है, यहां से हमारा रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, तो क्वोशंट को हम बैलेंस करते हैं, रिमाइंडर को क्वोशंट के साथ बैलेंस नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले रिमाइंडर से आप अपना अगर कोई क्वोशंट निकल सकता है तो निकालिए। जैसे रिमाइंडर मेरा 11 9 से बड़ा हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मुझे तो नंबर रिमाइंडर 9 से छोटा चाहिए था। तो मैं 11 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1 मेरा क्वोशंट आएगा, 2 मेरा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 2 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा
और जो 1 मेरा क्वेश्चन आया वो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाले में ऐड हो जाएगा, यानी ये 10 के बाद ये 11 बन जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, 1 एज इट इज, 1 आगे कैरी हो जाएगा 8, 3 एज इट इज। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 381, रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप बड़े से बड़ा नंबर, आप 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, किसी को भी लीजिए, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं आप सबके साथ बहुत क्विकली डिवाइड कर सकते हैं, बहुत क्विकली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में हमारा कंफर्ट इतना बन चुका होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर आए तो 2 डिजिट तक तो हम, मतलब उसके लिए हमें इस मेथड की क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वर्बली कर जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर 79 है, अगर आप मैथ्स में जरा सा भी क्विक है तो आप बहुत जल्दी उसको 4, 5, 7, 8, 9 इन डिजिट्स के साथ बहुत इजीली डिवाइड कर देंगे 2 डिजिट नंबर को। तो ये टेक्निक हमारे लिए तब ज्यादा फायदेमंद होती है जब 3 डिजिट नंबर्स आते हैं, 4 डिजिट नंबर्स आते हैं, 5 डिजिट नंबर आते हैं, 10 डिजिट नंबर भी आ जाए तो भी आप इससे फटाफट आंसर निकाल सकते हो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। उसमें बहुत अलग से मेहनत लगती है। चलिए, तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी एक काम करिए, आप रैंडमली 3 डिजिट्स और 4 डिजिट इनको पकड़िए, जितना बड़ा करेंगे छोटा करना आसान हो जाएगा। आप 10 3 डिजिट नंबर लिखिए, 10 4 डिजिट नंबर लिखिए। ठीक है, जो आपने 10 3 डिजिट नंबर लिखे हैं उन 10 3 डिजिट में से आप सबको हर एक जो फर्स्ट नंबर है, जैसे फर्स्ट नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, अगले को 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बाकी आपके पास दो नंबर्स एक्स्ट्रा बचेंगे 3 डिजिट में, उसको आप किसी भी 2 और डिजिट से डिवाइड कर लीजिए अपनी चॉइस के। ठीक है, ऐसे आपके पास जो 4 डिजिट नंबर है 10 लिखे हैं आपने, उसमें भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करिए, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे उनको फिर 2 या 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टेक्निक को इन 20 क्वेश्चन पे अप्लाई करिए। आप रैंडम 3 डिजिट, रैंडम 4 डिजिट नंबर लीजिए, अप्लाई कीजिए, 20 आंसर आपके पास आ जाएंगे। आंसर आने के बाद उसको कैलकुलेटर के साथ मैच करिए कि क्या आप आंसर सही फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो ढूंढिए, एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके पूरा देखिए, फिर देखिए कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम है संचित पांसल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।